Hi everyone, so welcome to the third and final installment of profit and loss. Okay, we have already done 2 classes on the same, and today we will be discussing majorly about discounts and frauds. Okay, fraud कैसे होता है ये बात करेंगे इस बार. Alright, चलिए पहले discount we have started. This is my brief introduction. You can join the Telegram channel link. We have also started the puzzle series. Okay, do watch the same also. Okay, so we have done some discount based questions, right? We have introduced discount earlier. Now we are talking about type 8, which is successive discount. Okay, so what is the meaning of that? So you must have observed this kind of discount in the market, right? 20% plus 30%, 50% plus 50%. It actually started way back in around 2000. I mean, 22 years ago. Okay, so that time people, I mean, even 50 plus 50 was one of the case there, right? 60 plus 40. So people get confused कि free में दे रहे हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं, right? But later they realize कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो पैसा देना पड़ता है, right? So what is the reason behind this is, what is logic is, successive discount का मतलब होता है first you will give discount of 50% and whatever price you will get, on that you will get 30% further discount. So those who have cleared the percentage topic which you have done, right, this is nothing but successive percentage change. वो जो A plus B plus AB formula पढ़ा था हमने, right, we have also solved it using the 100 approach, using the multiply factor. All these things can be applied here, all these formulas can be applied here. Because this is nothing but the same, successive decrease कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. So multiple approach से कर सकते हैं इसको भी हम, ठीक है. First approach, suppose the value is 100. Okay, after first discount 50% discount देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 minus हो जाएगा, it will, new price is 50. On this you will get 30% discount. 30% of that is 15. So you will get effectively 35 rupees की वो चीज आपको मिलेगी. So overall discount आपको मिल जाएगा 65% का. Okay, which is the case there. This is your first approach. You can also observe this कि without wasting time on this, you can simply add these two. कि 50 and 15, 65% discount हो गया. Right. Second approach, you can use the formula A plus B plus AB by 100, right? So decrease है तो negative use करेंगे. Minus 50 plus minus 30 plus minus 50 into minus 30 by 100 will come out as minus 80 plus 15 is nothing but minus 65, which is same as that, right? Third approach, multiply factor. 50% discount means multiplying factor will be 0.5. 30% discount means it will become 70%. So 0.7. 7 into 5 is 35. 0.35 आपको मिल जाएगा, which is nothing but 65% discount again, because 0.35 means it will become 35%. 35% हो जाएगा तो डिस्काउंट कितना मिला, 65% का, है ना. क्लियर है, तीनों अप्रोच लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना. कौन सी बेस्ट है यू कैन डिसाइड, राइट. ओके, सो एज ऑफ नाउ यू कैन सी दैट दिस इज बेटर और इवन थर्ड इज बेटर, राइट. बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑल्सो, राइट. समटाइम इट दिस माइट बी पॉसिबल कि फॉर्मूला इज बेटर, राइट. तो वो नंबर्स पे काफी इफेक्ट होता है. ऑल्सो डिस्काउंट कैन बी, आई मीन 50 प्लस 30 प्लस 20, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट भी पॉसिबल है ना. तो इन दैट केस आई थिंक ये तो फॉर्मूला बेकार है, बिकॉज 2 बराबर लगाना पड़ेगा. दिस कैन बी अप्लाइड और दिस इज अ बेटर अप्रोच, बिकॉज यहां पर आप अगेन 20% डिस्काउंट दोगे तो 7 का डिस्काउंट और मिल जाएगा. यू जस्ट नीड टू एड दीज 3 वैल्यूज टू गेट द फाइनल आंसर. So if the successive discount series is 3 or more than 3, in that case 100 approach is the best one. Clear? All right. So this is the case. Next,
ये भी आपने काफी देखा होगा, बाई 3 गेट 1 फ्री, लोग उससे बोर हो गए तो नया स्टार्ट किया। बाई 3 गेट 1 फ्री का मतलब कितना डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, है ना। दीज आर योर ऑप्शंस। अब तो खैर काफी आप लोगों को पता लग गया, बट स्टार्टिंग में पीपल गेट कंफ्यूज दैट कि 3 पे 1 मिल रहा है तो 1/3 का डिस्काउंट हुआ। दिस इज नॉट द केस, इट्स नॉट 1/3। ठीक है, लॉजिक समझते हैं। अंडरस्टैंड लाइक दिस कि आपने सपोज एक आर्टिकल 100 रुपीज का है, यू बाय 3, तो 3 आपने लिए, आपने कितना दिया उसको, 300 रुपीज दिए। यू पेड हिम 300 रुपीज, ही गेव यू 1 फ्री, सो इफेक्टिवली आपको 4 आइटम मिल गए। 4 आइटम का मार्क प्राइस कितना होता, 400 रुपीज। तो इन अ वे आर्टिकल्स वर्थ 400 इज यू आर गेटिंग एट 300 रुपीज। सो डिस्काउंट कितना मिला, 100 रुपीज का ऑन 400 ना। सो डिस्काउंट 100 का मिला बट ऑन 400 which is 25%. So answer will be this, C, not 33.3%. I hope it is clear. Suppose मैं बोलता हूं buy 2 get 6 free. हैरानी वाली बात नहीं, ऐसा भी होता है। So you are buying 8, इसमें से 6 फ्री हैं, तो 6 out of 8 into 100 gives you 75%. Okay, I hope it is clear now. ठीक है, मार्क प्राइस वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट। मार्केट में जहां भी हैवी डिस्काउंट चल रहे होते हैं वहां यही होगा। दे आर डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं करते, 100 रुपीज की चीज पे प्रिंट डाल देंगे 1000 रुपीज। Okay, this happened, okay. Then they will give you a discount of buy 2 get 6 free or 50 plus 50. 50 plus 50 is same as this only, na, because this means what, 0.5 into 0.5 gives you 0.25. मतलब वो 25% रह जाएगा, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 75%, विच इज सेम। सो मतलब बाई 2 गेट 6 फ्री हो या फिर 50 plus 50 इज वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। तो वो इसमें से एक स्कीम चला देगा, सो इफेक्टिवली आपको 250 का मिल जाएगा। वो आप बहुत खुश कि आप तो काफी डिस्काउंट में लेके आए वो चीज, वो तो खुश है ही, राइट। यही होता है, कोई बंदा नुकसान के लिए तो नहीं बैठा है ना। परमानेंट बोर्ड लगा रखे हैं सेल के, क्या मतलब है उस बात का। शुरू से जब से शॉप खोली है तो लॉस में जा रहा है, नॉट पॉसिबल ना। डेफिनेटली वो मार्कअप कर रहा है और कुछ नहीं है, और इतना मार्कअप हो जाता है, ठीक है। 10 टाइम्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना हैवी डिस्काउंट भी देना है, खर्चा तो चलाना है। बट अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मतलब थ्योरेटिकली तो दोनों सेम है, बट प्रैक्टिकली दिस इज बेटर, बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज दैट यू नीड टू बाई 8 आइटम्स। 2 खरीदो 6 फ्री हैं, वो जबरदस्ती के फ्री होते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, राइट। 8 आइटम लेने ही पड़ेंगे, यहाँ पर एक भी लोगे तो भी 75% डिस्काउंट है, राइट। अब उसमें से ये भी प्रैक्टिकली ये भी चीज हो जाती है कि जो 2 कॉस्टलीस्ट आइटम होते हैं उन्हीं का प्राइस लगता है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट वैसे भी 75 से कम हो जाना चाहिए। वैसे लेना कहीं से नहीं चाहिए इनमें से, बिकॉज ऑफ द रीजन आई गेव यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो बाई 5 गेट 2 फ्री। Simple now, 2 by 7. 2 by 7 is what? 28.57%. ठीक है, चलिए। Buy 1 get 1 free. Sorry, buy 1 get 1 is equivalent to discount percentage off. So you must be thinking 1 by 2, right? 50%. It was a trick question. Buy 1 get 1. नो डिस्काउंट, 0%। बाई 1 गेट 1, एक लो एक मिलेगा, इसमें डिस्काउंट का है। अच्छा, वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, ही माइट गिव यू बाई 5 गेट 7। 7 फ्री नहीं है, ध्यान दो यहां पे, ठीक है। सो दिस इज सेम एज बाई 5 गेट 2 फ्री। 5 लो तो 7 मिलेंगे, मतलब 2 फ्री मिल रहे हैं।
तो इफेक्टिव डिस्काउंट हेयर इज 2/7 अगेन. सो दिस एंड दिस इज सेम. तो फ्री वर्ड का ध्यान रखना है यहां पर, राइट? वो मेंशन है या नहीं है. बेस्ड ऑन दैट आंसर विल चेंज, राइट? क्लियर है? चलो, हाँ जी, ये महान काम देखो इसका. बाय 3 गेट 2, फ्री लिखा ही नहीं कहीं पे. तो ये तो नुकसान कर रहा है कि 3 लो, मतलब 3 के पैसे दो और यू विल गेट 2. ठीक है, उसका मतलब ऐसे फ्री था बट वो लिखना भूल गया. तो वो ये ना, नकल में अकल चाहिए एंड ऑल्सो वाली बात हो जाती है. खैर, ऐसा भी होता है. ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को, एंड देन विल डिस्कस. ऑलराइट, करें स्टार्ट. आफ्टर getting 2 successive discounts on mark price of rupees 150, a shirt is sold at for rupees 105. Second discount 12.5% का था, तो फर्स्ट डिस्काउंट बताओ कितना है. नाउ दो तीन तरीके से कर सकते हैं. देखो, 100 रुपीज की चीज, सॉरी 150 की चीज आपको 105 में मिली, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया? you'll get a discount of 45 over 150 into 100, which is 30%. ठीक है, अब एक डिस्काउंट आपका ये है, एक डिस्काउंट और ओवरऑल डिस्काउंट ये है. सो यू कैन यूज द फॉर्मूला कि मान लो पहला डिस्काउंट x था, तो x प्लस माइनस 12.5 प्लस x इंटू माइनस 12.5 upon 100 is given to you as 30, and you can solve it to get the answer. ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गया. ऑप्शन देख लेते हैं. करेक्ट. चलो, ठीक है. सेकेंड अप्रोच, मल्टीप्लाई फैक्टर 150 इंटू पहले वाले का मल्टीप्लाई फैक्टर लेट से एक्स ए थे, ले लेते चलो, ए था, इंटू सेकेंड डिस्काउंट है 1/8 का, है ना. 1/8 का डिस्काउंट का मतलब इट विल बिकम 7/8, और फाइनली आपको मिल गया 105 का. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट. ये कितना आ जाएगा आपका? 105 इंटू 8 डिवाइड बाई 150 इंटू 7. तो ये कटेगा यहां से, ठीक है, और ये कट जाएगा. ये आपका आ गया 4/5. 4/5 का मतलब 1/5 का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट था इसका मतलब. ठीक है, विच इज ऑप्शन डी. क्लियर है? दोनों अप्रोच में से इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो सेकंड इज बेटर. मल्टीप्लाई फैक्टर 1 है ना, बिल्कुल एक स्टेप में आंसर आएगा आपके पास. क्लियर? चलिए, ओके, अगेन पॉज द वीडियो, गिव इट अ ट्राई एंड देन विल डिस्कस. ठीक, डिस्कस करते हैं. Abhay fruit vendor realizes that the cost price of 35 oranges is same as selling price of 25 oranges, but to his customer he wants to offer a discount of buy 5 oranges and get one orange free. How much above the cost price Abhay must tag his price so that there is no change in his earlier profit percentage? Markup कितना का निकालना है basically. It's nothing new here, right? We have done all type of questions. सब का mix ही है ये. First thing, right? We will try to solve it as early as possible using logical tricks and without wasting time in writing all the things, right? First approach, ये हमने type 3 I think था, वो जो हमने किया था. 35 oranges का cost price is same as selling price of 25 orange. ठीक है, तो आप 35 oranges लेकर आए और आपने सेम प्राइस में 25 ऑरेंज बेच दिए, तो आपके पास प्रॉफिट हो गया ना. 35 लेके आए थे, 25 बेच दिए आपने. 10 ऑरेंजेस यू आर लेफ्ट विद, 10 का प्रॉफिट हो गया. एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस कि प्रॉफिट अगर आप इन टर्म्स ऑफ ऑरेंजेस या इन टर्म्स ऑफ आइटम निकालते हो, सो बेस हमेशा क्या होता है, विच इज बीइंग सोल्ड, जो बिका. तो कितने बिके? 25 ऑरेंजेस बिके. सो वी हैव ए प्रॉफिट ऑफ 10 ऑरेंजेस
ऑन 25 विच इज 40%. ठीक है, तो यहां 40% का प्रॉफिट है. अब वो डिस्काउंट दे रहा है बाई 5 गेट 1 फ्री. बाई 5 गेट 1 फ्री का मतलब 1/6 का डिस्काउंट है ना, 6 में से एक फ्री है. तो कितना मार्कअप करे, राइट? मार्कअप वाले क्वेश्चन भी हमने किए हैं कि इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना मार्कअप किया जाए, राइट? सो उसमें से अगर आप देखा जाए तो कौन सी अप्रोच बेटर रहेगी? सेलिंग प्राइस इन द फर्स्ट केस, इफ यू आर गेटिंग 40% प्रॉफिट, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस विल बी 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना? इसका मतलब 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस. एंड 1/6 डिस्काउंट दे रहे हो, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? 1/6 डिस्काउंट देंगे किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर. मार्क प्राइस को 1/6 का डिस्काउंट दूंगा तो वो मार्क प्राइस कितना रह जाएगा? 5/6. 1 - 1/6, है ना? सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 5/6 ऑफ मार्क प्राइस. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, डू वॉच द प्रीवियस वीडियो, वहां से क्लैरिटी मिलेगी. नाउ इक्वेट दीज टू. यहां से क्या आ गया? MP इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 42/25 ऑफ CP. 42/25 का मतलब हो जाता है 1 + 17/25. तो ये तो खुद पहले से था, इतना एक्स्ट्रा है, मतलब ये आपका मार्कअप हो गया. तो 17/25 into 100 is nothing but 68%, and that's your answer. Got it? चलिए, ओके, ऑलराइट. इसमें बेस्ट अप्रोच ये था. अब आते हैं फ्रॉड की कहानी पे. डिसऑनेस्ट ट्रेडर टाइप 9, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है टाइम प्रॉफिट लॉस के अंदर. डिसऑनेस्ट ट्रेडर, अभी तक ये जो मार्कअप की हमने बात की कि उसने 100 रुपीज की चीज को 1000 लिख के डाल दिया, राइट? वो फ्रॉड नहीं बोलेंगे उसको हम, बिकॉज सी टैग तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ ना. हर कंपनी ये कर रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है. अब वो टैग कितना % बढ़ा के करते हैं, वो 10 टाइम्स करें, 11 टाइम्स करें, 20 टाइम्स करें, उसको आप फ्रॉड नहीं बोल सकते हो. फ्रॉड ये होता है कि आप बोल कुछ रहे हो और बेच कुछ रहे हो. ठीक है, जैसे कबाड़ियों, जो कबाड़ी वाले होते हैं उनको साथ आपने काफी देखा होगा ये, राइट? जिसको हम रिग्ड वेट यूज करना बोलते हैं, राइट? वेट ही गड़बड़ होता है उनका ना. सो एक्चुअल लिखा होगा उसके पास 1 kg, लेकिन एक्चुअल वेट इज लेस देन 1 kg, है ना? सो ही इज टेलिंग यू कि ये 1 kg का वेट है, बट एक्चुअली उसका वेट कम होता है, राइट? तो जैसे ये है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट ओनली वेज 750 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स. वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, जितने पे ला रहा है उतने पे सेल कर रहा है, बट वेट के में गड़बड़ कर रहा है, अंडरवेइंग कर रहा है. ठीक है, अंडरवेइंग करना बोलते हैं इसको. तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? मल्टीपल अप्रोच से कर सकते हैं इसको, 3 अप्रोच से लगा सकते हैं. ठीक है, पहली अप्रोच, वेट्स पे ध्यान दो. हमने वो टाइप 3 किया था, अगेन अभी जो पहले यूज किया है. Here if we talk about profit in terms of grams, है ना, 750 ग्राम्स का सामान गया, लेकिन मनी कितने की आ गई? 1000 ग्राम्स की, है ना? कस्टमर क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो? मैंने सपोज मैं शॉपकीपर हूं, मैंने 750 ग्राम, मैंने 1 kg का वेट रखा, तो आपको दिख रहा है कि वो 1 kg का वेट है, करेक्ट? बट एक्चुअल वेट उसका 750 ग्राम है. मतलब मेरा जो सामान जाएगा वो 750 ग्राम जाएगा, लेकिन मैं पैसे आपसे लूंगा 1 kg के, 1000 ग्राम के. इन अदर वर्ड, अगर मैं ये बोलूं कि 750 मैंने खर्च किए और 250 का मुझे प्रॉफिट हो गया इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, है गेटिंग? देख, 250 ग्राम्स का प्रॉफिट है, 1000 ग्राम्स में नहीं. अगेन हमने क्या बात किया था? प्रॉफिट एंड लॉस इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल अगर आप बात करोगे तो बेस हमेशा क्या होगा? दैट मैनी आर्टिकल विच इज बीइंग सोल्ड, जो बिक रहा है उस पर बात करेंगे, राइट? तो बिका तो 750 ना, राइट? So method 1 क्या हुआ? We have a profit of 250 grams on selling 750 grams. So 250 by 750 means 33.3% is your answer, not 25%. ठीक है, क्लियर? ये मेथड 1 हो गया. इसी को आप फॉर्मूले की शक्ल दे सकते हो कि ये 250 कैसे आया था? 250 का मतलब था 1000 माइनस 750, राइट?
तो 1000 यानी कि जो ये वेट जो दिखा रहा है माइनस 750 मीन्स एक्चुअल वैल्यू, राइट. सो हाउ कैन वी कैन जनरेट द फॉर्मूला डिफरेंस इन क्वांटिटी. डिफरेंस वही हो गया ना आपका 1000 माइनस 750, वो डिफरेंस हो गया आपका, तो 250 हो गया, राइट, अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी गिवन टू द कस्टमर इनटू 100, विच इज अगेन दिस. इससे बेटर अप्रोच पहली वाली है ना. बट फॉर्मूला तब काम में आएगा सपोज क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दूं कि आई एम यूजिंग सम वेट, 1 kg का वेट है लेकिन उसका एक्चुअल वेट कुछ और है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग सो एंड सो प्रॉफिट, 16.6% का प्रॉफिट हुआ. इन दैट केस आई कैन से फॉर्मूला बेटर हो जाएगा. उसमें करना कुछ नहीं है आपको, वही x अपॉन 1 kg इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट जो भी आपको दिया होगा, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x, है ना. ठीक है, चलिए. थर्ड अप्रोच, अगर मैं इसको प्राइस में कन्वर्ट कर दूं, सपोज 1 ग्राम 1 रुपी का है. अब इसमें दो पर्सपेक्टिव में देखो, कस्टमर क्या सोच रहा है और शॉपकीपर क्या सोच रहा है, राइट. मैंने 1 ग्राम 1 रुपी का है, राइट, मैंने वेट रखा 1 kg. सो यू आर अ कस्टमर, यू आर थिंकिंग कि ये मेरे को 1 kg सामान दे रहा है और 1 ग्राम 1 रुपी का है, तो आई शुड पे हिम 1000 रुपीज. तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 1000 रुपीज, राइट. वो मुझे पता है ना कि मैंने जो सामान रखा है दैट इज ओनली वेइंग 750 ग्राम. मतलब इधर वर्ड्स मेरा 750 ग्राम कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि 750 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और मैं पैसे ले रहा हूं 1000 रुपीज. गेटिंग इट. तो 1 ग्राम 1 रुपी का है अगर, तो सेलिंग प्राइस 1000 हो गई, कॉस्ट प्राइस 750 है. तो अब तो क्लियर है, 250 का प्रॉफिट ऑन 750. करेक्ट है. ये अप्रोच ज्यादा बेटर तब होगी जब मैं इसमें, अभी तो वो कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा है, राइट, बट अगर वो सपोज उसमें प्रॉफिट कमा लेगा देन इट दिस अप्रोच विल बी बेटर, राइट. उस पर देखते हैं. A dishonest shopkeeper professes to sell at cost price but weighs 800 grams. ये लिखना नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मार्कअप तो मैंने किया ही हुआ ना. छोड़ दो उसको. बेसिकली पॉइंट ये है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस दिस वेट एज वेल एज ही इज नाउ मार्कअप, डूइंग द मार्कअप ऑफ 20%. तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट. तो इस केस में आगे दो तरीके लगा सकता हूं मैं, ठीक है. मेथड 1, फर्स्ट केस में कितना प्रॉफिट है, 200 ग्राम्स का प्रॉफिट है वाइल सेलिंग 800 ग्राम्स, सो 25% का प्रॉफिट ले रहा है वो, एंड देन अगेन मार्कअप कर रहा है 20%. सो दिस एंड दिस इज नाउ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज. So we can use that formula a plus b plus ab by 100. That gives you 50%. ठीक है. बट ये उतनी बेटर अप्रोच नहीं है, बिकॉज पहले ये लगाओ फिर ये लगाओ, फॉर्मूला से हम वैसे ही बचना चाहते हैं. ठीक है, सेकंड अप्रोच पे आते हैं. सेकंड अप्रोच, मार्कअप नहीं होता. सपोज वही 1 ग्राम 1 रुपी की वाली बात कर रहे हैं. पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, 800 रुपीज का सामान 1000 में जा रहा था, यही केस हो रहा है यहाँ पे. सो सपोज ये मार्कअप नहीं करता, तो 800 रुपीज का जो आर्टिकल है वो आपका 1000 रुपीज में जाता है ना. अगेन कस्टमर और शॉपकीपर पर ध्यान दो. पहले जो कस्टमर है वो ये सोच रहा था कि इसने मेरे को 1 kg सामान दिया जो इसको 1000 रुपीज का पड़ा होगा, और ये पैसे तो कमा नहीं रहा मुझसे, तो मैं इसको 1000 रुपीज दूंगा. ठीक है. अब उसको शॉपकीपर ने बोल दिया कि मैं 20% तो प्रॉफिट अपना लूंगा भाई. ठीक है. सो अब कस्टमर क्या सोचेगा, अच्छा इसने 1000 रुपीज दिए तो इस पे 20% प्रॉफिट ये लेगा, तो 200 रुपए का प्रॉफिट इसको देना पड़ेगा, तो आई शुड पे हिम 1200 रुपीज. तो अभी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 1200 रुपीज, है ना. बट सॉरी, सेलिंग प्राइस, राइट, सेलिंग प्राइस 1200 रुपीज हो जाएगी, बट कॉस्ट प्राइस अभी भी 800 ही है. तो नाउ ही इज सेलिंग 800 रुपीज का आर्टिकल एट 1200, तो 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया ऑन 800, विच इज 50%. क्लियर. अब इस केस में देखा जाए तो ये अप्रोच बेटर है, बिकॉज हमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा. सपोज मैं कहता हूं कि मैं 900 ग्राम्स का वेट यूज में ला रहा हूं एंड 30% प्रॉफिट कमा रहा हूं, और से इसका सिंपली मतलब है 900 रुपीज की चीज को मैं 1300 पे सेल कर रहा हूं, दैट्स इट. तो 400 का प्रॉफिट
over 900 into 100. क्लियर यहाँ तक? 1/9 हमने याद किया हुआ 11.11%. So this is nothing but 44.4%. I hope this clear, right? So method 2 is best in such scenario, right? चलो ये मिक्स क्वेश्चन है, अब इसको ट्राई करो. चलिए डिस्कस करते हैं. इन विंटर्स मीटर स्केल श्रिंक बाय 20%. A trader marks up his goods by 20% and then gives a discount of buy 3 meters and get 1 meter free. Find his overall profit or loss percent. ऑप्शन दे देता हूं. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा होगा. मल्टीपल चीजें चल रही है, राइट? मल्टीपल चीजें तो हैंडी, जो हमने इतने सारे ऑप्शंस किए ना वो याद रखो, उसको वो हैंडी होते हैं ना चीजें, तो याद रहती हैं. ठीक है, समझो क्या हुआ यहाँ पे. मीटर स्केल 20% श्रिंक हो गया. मीटर स्केल क्या होता है? मीटर स्केल होता है जब आप क्लोथ लेने जाते हो, ओपन है ना, वो लट्ठे वाले टाइप्स, तो उसमें क्या है, वो मीटर स्केल यूज करता है जिसपे 0 से लेकर 100 तक की मार्किंग होती है सेंटीमीटर्स में. इसको बोलते हैं मीटर स्केल. इसकी लेंथ 1 मीटर है इन सिनेरियो, इन नॉर्मल सिनेरियो. यहाँ पे अंडरवेइंग कैसे होती है, यहाँ पे फ्रॉड कैसे होता है कि जो लेंथ है वो लेट से 90 सेंटीमीटर ही है. तो अगर कोई शॉपकीपर ऐसा यूज कर रहा है कि मीटर स्केल उसने चोर बाजार से नया ले लिया जिसमें जो छोटा था, एक्चुअली लेंथ छोटी थी, तो यहां पर क्या होगा कि कस्टमर को 90 सेंटीमीटर क्लोज जाएगा लेकिन पैसे आएंगे 100 सेंटीमीटर के. तो 90 रुपीज की चीज को मैं 100 में सेल करूंगा, तो 1/9 का प्रॉफिट होगा यहां पर, इफ दिस द केस है ना. अब यहां पर क्या हो रहा है कि विंटर में 20% श्रिंक हो गया, मतलब मीटर स्केल की जो लेंथ 100, मतलब उसने फ्रॉड नहीं किया, बट हुआ क्या कि जो मीटर स्केल, सर्दियों में चीजें सिकुड़ती हैं, इतना नहीं सिकुड़ती, वो अलग बात है, बट ठीक है क्वेश्चन बनाने के लिए. तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो 100 सेंटीमीटर था वो श्रिंक होके 20% कम हो गया, मतलब 80 सेंटीमीटर रह गया. तो अभी क्या हो रहा होगा कि 80 रुपीज की चीज 100 रुपीज में जा रही होगी अगर कोई मार्कअप नहीं है तो. बट उसने मार्कअप कर दिया 20%. सो कैन आई से 80 रुपीज की चीज 120 पे सेल हो रही है. ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है एज ऑफ नाउ. अब वो कह रहा है बाई 3 मीटर गेट 1 मीटर फ्री. यहां पे कितना डिस्काउंट मिला उसको? 1/4 यानी कि 25% का डिस्काउंट है. तो इस 120 पे अगर मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा तो 30 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस रह जाएगी 90. सो योर प्रॉफिट इज 10 ऑन 80 into 100. That is 12.5%. ठीक है, ऑप्शन बी. Got it? स्टेप में करोगे तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई करो. डबल फ्रॉड हो रहा है यहां पर. खरीदते हुए भी फ्रॉड कर रहा है, बेचते हुए भी फ्रॉड कर रहा है. पैसे की कोई मोह माया नहीं है, जितने का ले रहे हो उतने का बेच रहे हो. A dishonest man sells at cost price only, but while buying he uses a weight which displays 1 kg but his actual weight is 1200 grams. ज्यादा वेट है उसका. तो सोचो अगर मैं खरीद रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस वेट, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगेन पर्सपेक्टिव सोचो. मैं गया शॉप पे, मैंने कहा भैया ये लो 1 kg का वेट, मुझे 1 kg शुगर दे दो. तो क्या होगा कि 1 kg वेट है और मैं खरीद रहा हूं, अब है ना, मेरा वेट है वो. सो उसको दिखेगा कि अच्छा ये 1 kg है तो मैं 1 kg शुगर दे देता हूं. उसने 1 kg दिया, मैंने उसको 1 kg के पैसे दिए, बट वेट क्योंकि 1200 ग्राम्स था तो मेरे पास जो शुगर आएगी वो तो 1200 ग्राम्स आ जाएगी. मैंने पैसे पे किए 1 kg के, शुगर मेरे पास 1200 ग्राम्स आ गया.
सो इन अदर वर्ड्स मैं 1000 रुपीज पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो सामान आ रहा है वो 1200 ग्राम का है, 1200 रुपए का है, करेक्ट. सो आई एम गेटिंग 200 रुपीज का प्रॉफिट हेयर ऑन 1000 नाउ, बिकॉज वो 1000 मैंने दिया ना, मेरा कॉस्ट प्राइस तो वही है यहाँ पर. सो 20% प्रॉफिट. फर्स्ट केस में 20% प्रॉफिट है, ठीक है. और सेकंड केस तो हम अभी निकाल ही चुके हैं. सेल करते हुए जब वो 800 ग्राम्स का वेट यूज में लाएगा तो उसे 200 का प्रॉफिट होगा, लेकिन किसके ऊपर? 800 के ऊपर. तो यहां से उसको 25% का प्रॉफिट है. देन अगेन यूज a प्लस b प्लस ab by 100 विल गिव यू 50% ओनली. सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ना ये तो इफेक्टिवली वैसे, ठीक है. दिस फर्स्ट अप्रोच. सेकंड अप्रोच ग्राम्स में बात करते हैं. फर्स्ट वाले केस में कितने ग्राम का प्रॉफिट है? 200 ग्राम्स का प्रॉफिट है. सेकंड वाले केस में भी 200 ग्राम्स का प्रॉफिट है. सो टोटल प्रॉफिट उसको 400 ग्राम्स का हो गया. while selling 800 grams, as simple as that, 50%. बेटर अप्रोच, ठीक है ना. हर क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से मेथड बदल जाते हैं, इसलिए सारे क्लियर होने चाहिए. ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन. Pause the video, give it a try, come back again. A merchant uses a weight of 0.75 kg in place of 1 kg to sell potatoes. Consider his actual profit percent or loss percent to be A when he pretends to sell it at 10% loss and B when he pretends to sell it at 10% profit. Find value A plus B. अगर प्रॉफिट लॉस नहीं होता तो क्या होता? 750 रुपीज की चीज को मैं 1000 पे सेल कर रहा था, इफ देर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है. अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल करता तो बिकॉज ऑफ वेट 750 रुपीज की चीज 1000 पे बिकती. नाउ फर्स्ट केस में जब मैं 10% का लॉस ले रहा हूं तो मैं कितने बेचूंगा? 900 रुपए में बेचूंगा. अभी मुझे लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही, ठीक है. अभी क्या हो रहा है? 750 रुपीज की चीज 900 पे सेल हो रही है, ठीक है. तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया? 150 का प्रॉफिट हो गया ओवर 750 इंटू 100. दिस इज नथिंग बट 20%, ठीक है. ऑप्शन थी क्या? हाँ. केस 2, जब मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा तो क्या करूंगा? 750 तो मेरा कॉस्ट प्राइस अभी भी था, लेकिन अब मैं इस पे 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो मुझे कितने का सेल करूंगा? 1100 रुपये का सेल करूंगा. नाउ माई प्रॉफिट इज 350 ओवर 750 इंटू 100. सही किया है ना? हाँ, 250, ठीक है. ये कितना हो गया? 5, 7, 15. सही कर रहा है ना? पास दिखता नहीं है कई बार. हाँ, तो 750 का 1100 में बिकेगा, तो 250, 350 अपॉन दिस. हाँ, ठीक लग रहा है अभी तक तो ये हो गया. इससे कट जाएगा 140 बाई 3% का प्रॉफिट यहां से, ठीक है. तो ये ए और बी आपका आ गया. इनको ऐड करो तो ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस, बिकॉज क्योंकि वैसे ही अपॉन 3 आ रहा है वहां पर, ठीक है. क्लियर है? आई थिंक. ऑलराइट, चलें.
Try this. A dishonest dealer mixes 1 kg of sand with 5 kg of rice and sells the entire mixture at 25% more than the cost price of rice. Find his overall profit percent. Sand comes free. चलिए, अभी क्या हो रहा है कि 1 kg सैंड मिला रहा है 5 kg राइस में. तो दो तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट अप्रोच, अगर 1 kg सैंड मिलाओगे 5 में तो स्ट्रेट अवे मेरे पास 1/5 यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा. उसके बाद वो 25% और कमा रहा है. सो अगेन यू कैन यूज a plus b plus ab by 100 which gives you 50%. ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गया आपका. सेकंड, रुपीज में बात करते हैं. मान लो राइस जो है वो 100 ले लेता हूँ, चलो 100 रुपीज पर केजी का है. 1 रुपी पर केजी कौन सा होता है? तो आप ध्यान दो, आपने क्या किया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपीज. 5 kg राइस आपने लिया, उसमें 500 रुपीज का पड़ा, उसमें आपने 1 kg सैंड मिला दिया. ठीक है, और आप बेच कितने पे रहे हो? तो आप 6 kg बेच रहे हो. किस प्राइस पे? 25% मोर देन द दिस. तो इस पे 25% एक्स्ट्रा लोगे तो 125 का सेल करोगे. तो सेलिंग प्राइस आपका 125 रुपीज पर केजी है. सो 6 इंटू 125 करोगे, आएगा 750. स्ट्रेट अवे गिव्स यू 250 रुपीज का प्रॉफिट ऑन 500, 50%. ठीक है, क्लियर? तो ये अप्रोच ठीक है अपनी जगह पे, राइट, दोनों लगा सकते हो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा. ये अप्रोच तब बेटर हो जाती जब आपका सैंड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता. तो आपका कॉस्ट प्राइस विल चेंज. मान लो सैंड का प्राइस, मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को. सैंड मान लो वो कह रहा है कि भैया सैंड का प्राइस 20% ऑफ राइस है. ठीक है, तो उसमें केस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में आपका 5 kg का प्राइस ये आता, प्लस 1 kg सैंड आती है आपकी 20% के हिसाब से 20 रुपए की. तो 520 हो जाता, बस ये डिफरेंस है. तो योर प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस्ड. तो प्रॉफिट होता है इस बार 230 का ओवर 520 इंटू 100. तो अगर सैंड या मिल्क और वाटर पे चलते हैं, है ना, उस केसेस में इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज दिस लॉजिक, अगर वो फ्री वाली बात नहीं कर रहा है तो. ऑलराइट जी, तो ये हमने फ्रॉड की कहानी पढ़ी आज. ठीक है, सो दिस एंड्स विद द प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट्स. बेसिक्स हमने कर लिए सारे, राइट. देखो क्वेश्चन की वैरायटी मोरलेस हमने कर ली है. अभी ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, राइट. इन सब का मिक्सचर हमने कुछ किया, राइट. क्वेश्चन का लेवल कैसा भी सकता है, राइट. सो विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग क्लासेस, राइट. उससे और वैरायटी का पता लगेगा आपको. ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस में खत्म हो गया, बट ये हमने जो 8 वैरायटीज की, ये काफी फ्रीक्वेंट वैरायटीज हैं एंड दिस एक्चुअली कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स. तो अगर ये 8 आपके पास आ जाएगा क्लियर, तो डेफिनेटली कोई नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर ही सकते हो. लॉजिक पे ध्यान देना, है ना, स्पेशली इन द लास्ट डिसऑनेस्ट वाले केस में, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. मल्टीपल चीज़ें आप जब यूज़ करते हो ना, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है ना. तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. चलिए, दैट्स इट अबाउट PLD. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.